In this module, we will discuss biomimetic nanomaterials. And in biomimetic nanomaterials, we will firstly discuss self-healing adhesive. That what are the self-healing adhesive and how they can be used to make biomimetics and have different applications in nanoscience. सो सेल्फ हीलिंग एडहेसिव्स ऐसे मटेरियल जो कि किसी चीज के साथ स्टिक करते हैं और सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी होती है. दे कैन बी आर्टिफिशियल और मैन मेड और दे कैन बी नेचुरल. सो लेट्स डिस्कस अबाउट नेचुरल सेल्फ हीलिंग एडहेसिव्स और मटेरियल्स. डाई एटम्स आर अ टाइप ऑफ एलजी. डाई एटम्स एलजी की एक टाइप है जिसमें नैनो स्ट्रक्चर्ड एमॉर्फस सिलिका सरफेस पाई जाती है. Diatoms are unicellular algae. Diatoms unicellular हैं that have the capability to colonize any natural and man-made submerged surface. जिनके पास ये ability है कि वो किसी natural या man-made यानी artificial surface के ऊपर colonize कर जाते हैं. So diatoms are a large group of eukaryotic microalgae that have a rigid cell wall made of silica. अब जो diatoms की cell wall है ये silica की बनी होती है. Diatoms are often among the first organism to colonize underwater surfaces because their adhesive mucilage enables the cell to attach to substrate of very wide range of chemical composition. Diatoms वो पहले organisms थे जो underwater surfaces यानी पानी के नीचे जो surfaces होती हैं वहाँ colonize करने की इनकी ability थी. और वो किस वजह से थी? Because उनके पास adhesive यानी sticky म्यूसिलेज थी जो क्या करती थी? इनेबल करती थी सेल्स को कि वो किसी भी सबस्ट्रेट या किसी भी और केमिकल कंपोजिशन की कोई सरफेस हो के साथ वो स्टिक कर जाए या अटैच हो जाए. अब वो जो सरफेस है उसकी कंपोजिशन ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी, वो नेचुरल भी हो सकती है या वो आर्टिफिशियल या मैनमेड भी हो सकती है. Surface adhesion of diatoms belong to the rapid pinnate type. ये एक rapid pinnate जो है वो एक टाइप है surface adhesion की diatoms में which require the secretion of so-called adhesive mucilage strands through a dedicated slit. जो कि क्या require करते हैं कि वो जो mucilage है वो secrete हो in silica cell wall which is termed as ref, जिसको हम ref कहते हैं. सो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हम अब आगे जाके डिस्कस करेंगे. Adhering cells can then move across the surface which is accomplished through a actin myosin dependent cytoskeletal motor that translocate the adhesive mucilage strands in a rearward direction through the ref, thereby moving the cell forward. अब देखें क्या होता है कि जब वो सेक्रीट करते हैं एडहेसिव तो जो सेल्स होते हैं एडहेरिंग सेल्स होते हैं वो एक सरफेस की तरफ मूव करते हैं और उसको मूव करवाने के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स या जो फैक्टर्स हैं लाइक एक्टिन मायोसिन डिपेंडेंट साइटोस्केलेटल मोटर है उसके थ्रू वो ट्रांसलोकेट करती हैं और देन वो एक खास डायरेक्शन में रैफ मूव करती है और सेल जो है वो मूव करता है फॉरवर्ड. Some diatom species have evolved strong self-healing underwater adhesive. कुछ diatoms की species ऐसी हैं जिनके अंदर underwater adhesive की बहुत strong ability है self-healing की. Some are free floating. उसमें से कुछ ऐसी हैं जो freely पानी में बह सकती हैं. Other have adhesive properties in water. कुछ attached होती हैं यानी stick होती हैं. For instance, diatoms in the Antarctic seas can attach to ice. Antarctic seas के अंदर वो जो diatoms हैं वो बर्फ या ice के साथ attach रहती हैं. Others secrete viscous mucilage which binds colonies together while protecting the silica shells from wear as they rub against each other. और कुछ mucilage को secrete करती हैं जो viscous material होता है और वो help करता है कि वो colonies जो इन diatoms की होती हैं उनको bind रखे और उनको protect करे silica shells को. Mollusks are another species. अब mollusk एक another species है जिनके अंदर adhesive properties पाई जाती हैं. Both diatoms and mollusks have strong underwater glues that can also resist stress and self-heal. Diatoms और mollusk दोनों के अंदर underwater sticking property है जो कि self-healing property रखती है. अब इन सारी information का basic purpose था
कि दे सर्व एज बायोमिमेटिक मॉडल फॉर सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स। अब जो मैन मेड सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स है उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको ये नेचुरल मटेरियल्स के जरिए या नेचुरल ऑर्गेनिजम्स जो एडहेसिव्स जो हैं वो सेक्रीट करते हैं, इनके जरिए हम कवर कर सकते हैं। सो ये जो मॉडल्स हैं डाई एटम्स और मोलस्क, दे कैन सर्व एज अ बायोमिमेटिक मॉडल फॉर सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स। These natural adhesives and their self-healing properties are due to the properties of the proteins contained in them. अब ये जो प्रॉपर्टी आती है स्टिकिंग नेचर की या एडहेसिव नेचर की, बिकॉज और इस प्रॉपर्टी के नीचे, इस प्रॉपर्टी के बिहाइंड जो है, देयर आर सर्टन प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड. These proteins have sacrificial bonds that allow the molecule to be reversibly stretched by breaking and rebonding. तो इन प्रोटीन्स के पास कुछ सैक्रिफिशियल बॉन्ड्स होते हैं जो अलाउ करते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रेच हो, और वो स्ट्रेच कैसे हो कि उसका बॉन्ड बार बार ब्रेक होता है एंड देन रीज्वाइन होता है. This sacrificial bond behavior has been observed in many other materials such as wool, और ये जो bond material की टाइप है ये कुछ अदर materials जैसे कि wool है इसमें भी देखी गई है. Closing the wounds with sticky material has been introduced to prevent bleeding and induce the wound healing process. Now we come to the applications of these sticky materials and biomimetic nanomaterials के wounds को प्रिवेंट करने के लिए ब्लीडिंग से और वूंड के हीलिंग प्रोसेस को ये स्टिकी मटेरियल्स यूज होते हैं, और ये स्टिकी मटेरियल्स इन नेचुरल ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं. Many types of surgical adhesives, including tissue adhesives, have been developed to be a suitable alternative for sutures and staples. Sutures और staples को रिप्लेस किया है टिश्यू एडहेसिव्स ने, जो कि सर्जिकल एडहेसिव्स की टाइप है, और ये नेचुरल या मैन मेड बनाए जा रहे हैं. A new approach which aims at producing bioadhesives by mimicking the nature along with applying nanotechnology method. अब क्या किया जा रहा है कि कुछ नेचर यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स हमने ऊपर मोलस्क्स और डायटम्स डिस्कस किए हैं कि नेचुरल ऑर्गेनिजम्स से मटेरियल लेके और कुछ नैनो टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल यूज करके बायोमिमेटिक्स बनाए जा रहे हैं या बायो एडहेसिव्स बनाए जा रहे हैं जिनकी जो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत इन्हांस्ड है, बहुत अच्छी है, और वो क्या कर सकती है, वो वूंड हीलिंग और डिफरेंट एप्लीकेशंस में हमें मदद दे सकती है. इवन के दे हैव द एबिलिटी फॉर रीजनरेटिव पोटेंशियल, के कोई डैमेज्ड एरिया है बॉडी का वो उसको रीजनरेट कर सकती हैं, उसको सेल्फ हील कर सकती हैं. So engineering stable underwater adhesives currently pose a major technical challenge. कि अंडर वाटर एडहेसिव्स जो हमें इनसाइड द वाटर भी डिफरेंट लाइव्स पाई जाती हैं, तो वहाँ भी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो वहाँ इट इज़ अ मेजर चैलेंज, क्योंकि कुछ मैन मेड एडहेसिव्स जो बनाए गए दे फेल इन वेट कंडीशंस, वो अंडर वाटर फेल हो गए owing to the chemical modification of adhesives or its substrate. Diatoms produce adhesives that are extremely strong and robust. हमने पहले भी पढ़ा कि डायटम्स जो हैं वो जो एडहेसिव्स प्रोड्यूस करते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट. वो सी वाटर इन्वायरमेंट में भी करते हैं और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में भी करते हैं. अब क्या इस पे रिसर्च या स्टडी की गई है कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के थ्रू डायटम्स की स्पीशीज को देखा गया है, स्टडी किया गया है, फेज इमेजिंग की गई है, एंड 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट्स रिवील्ड characteristics of these natural adhesives that may be of use in designing man-made adhesive analogs that function in wet environment. अब इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये देखा गया है कि जो डायटम्स एडहेसिव प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मैन मेड एडहेसिव्स को रिप्लेस कर सकते हैं, या मैन मेड एडहेसिव्स उसी डिजाइन के हम एनालॉग्स बना सकते हैं जो कि अंडर वाटर इन वेट इन्वायरमेंट्स में फंक्शन परफॉर्म करेंगे. The AFM allows for investigation of micromechanical properties of cell surface. AFM माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम सेल की सरफेस और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज, एडहेशन फोर्सेस एंड हार्डनेस मेजरमेंट्स इन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम इस माइक्रोस्कोपी के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं. Experiments with 3 diatom species that produce outstanding natural adhesives
कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जो कि और आइडेंटिफाई हुए हैं 3 स्पीशीज हैं डाई एटम्स की, जिनके अंदर आउटस्टैंडिंग नेचुरल एडहेसिव प्रोडक्टिव कैपेसिटीज हैं, कि वो जो एडहेसिव प्रोड्यूस करते हैं नेचुरली, दे हैव आउटस्टैंडिंग फंक्शन। और उनमें कौन कौन सी हैं? यूनिटिया, सुडिटिका एंड नेविकुला सेमिन्यूलम, एंड द थर्ड इज अनआइडेंटिफाइड स्पीशीज, वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। सो एक्चुअली द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर वाज टू डिस्कस के जो मैन मेड या आर्टिफिशियल सेल्फ हीलिंग एडहेटिव्स की लिमिटेशंस हैं, वो हम नेचुरल ऑर्गेनिजम्स जो एडहेसिव सेक्रीट या प्रोड्यूस करते हैं, हम उनका डिज़ाइन उस तरह बना सकते हैं या उनको यूज़ करके और नैनो टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम बायो एडहेसिव्स या कुछ बायो मिमेटिक मटेरियल्स बना सकते हैं, जिनकी लाइफ साइंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हो सकती हैं, या मेडिकल के अंदर, जैसे कि वुंड हीलिंग। थैंक यू।